Nikita, you can share me your screen. Okay, sir. So I will make every setup on your machine, and I will record it, and everybody is going to do the same thing. Okay. Okay. Is my screen visible? Yeah, it's visible. Okay. So we will do one by one, and I will also tell you why we are doing the each and everything. Okay. 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 So first of all, do one thing. Just install the NetBeans on your machine. So you can say NetBeans 8.2. Double click on it. Yeah. Oh, Java is not installed on your machine? No, sir. Oh, in that case, okay. I thought Java is installed in your machine. Okay, Mhm. okay. So first of all, you have installed the Java. So in that case, okay. First of all, exit, yeah. Open a tab, yeah. You need to install the Java first. Okay. I thought Java is installed on your machine. Mhm. Java is ready, sir? Java 8 download. Okay. Okay, here you will go. So in that case, actually, you have to create an account. Okay. Okay. Yeah, you can click on the first one, yeah. Okay, here you can do one thing. Java key, Windows 64, yeah. Not this one. No, no, no. Go to above, go to above. You have to go to top, yeah, top. Yeah, here you can say, here you have to click on this, right? Click on it. Yes, click on it. And when you will download, it will ask you for an account. Okay. It will ask you, don't worry, you will create account. It is very quick. Let's create account. Okay, okay, yeah. You have to click on the create account. Hi, Shrinkla. Hi, Amit. Amit, your mic is not working today also? Sir, have you shared the link? Yeah, I've shared the link on the same WhatsApp group. No. What needs to be downloaded means what needs to be installed. Okay. That actually what is happening that I will share separately. Okay, because you can say few persons are here, not the paid one. Okay, so Okay. after today class, I will share the recording as well as share the that link also. Okay, Okay. Okay. you have already paid, so I will share you the link. Okay, Okay, sir. Okay. okay. Uh, like you can say Amit has paid, Likta has paid, so 4-5 person have already paid, so I've shared them link. Sure, sir. Okay, now you have to go to the email address. Whatever But email you have to it is saying I already have an account, so I'll try not to use it. have account. Oh, you have account. In Yeah. that case, you can use that one. That is good. So it means you have account. So you have already downloaded. You can say Java on any other machine. Probably yes. Yes, sir. Oh, wow, you have account. You got it. Great, great. Mhm. Yeah. So for others, that if you have, suppose take the, because the thing is most of the person have already learned Java and Selenium previously. So in that case, Java will be installed on your machine. But if it is not installed, you can go to the Oracle account and download a version there. Okay. So like Likda has already account, so she just logged in and download the JDK. So now click on it. So now the things will be little bit fast because you have an account. Yeah. Yeah. So next, simply next. And yeah.
Your system is very quick. Wow. Mhm. Just simply click on OK. Okay, we don't need it. Okay. Change this one. Why? Okay, I GRE. think this Okay. one. No, same is next. You can see here 3 billion devices run Java. So now you can understand that why I always say that the person should build a career in the automation in Java plus. It isn't that most of What are we doing currently? uh, currently uh, currently today we have planned that we are going to make a setup of the API. So it is expected that Java should be stored there because Java was not stored on the Likita machine. So she just installed the Java. Okay. Uh, next step is right? Simply close it. Simply close it. Okay. Okay. Now you can see here. She just installed the Java. Now you can no. Don't go here. First of all, Okay. just edit environment variables. Click on search on the Windows icon. Environment. Just write environment. Yeah. Click on the first one. Edit the system environment variables here. So what we are doing, we are just installing the Java and setting the path for that. So click on that, click on this one. Yeah, it should open a window. It's not opening any window. Yes, sir. It's taking some time. Okay, click on this one. Yeah, I don't know, it should open a window for you. Just click on the below one, below the setting one. Yeah, click on this one. Okay, it should open. I don't know why it's not opening. It's look like Harvinder stuck because in our the cursor is not moving. Double click on it, maybe double click on it. It should open. I double click on it. No. Why? You are using window. Which version of the Windows? It's Windows 10. Windows 10. Windows 10. Okay. Let me find some other way to do this. But Sir, while opening our this PC, we can also go over there system setup. okay, just try the second thing he's telling. You can try that Yeah, thing also. press Window E button, Window Press plus Windows. E button. Okay. Go click on this PC on the left side. Yeah, right click on this here on the blank space. On the PC. Okay. Yeah. There's a property. Oh. Here in the properties, just type environment. Now click on this one. Focus is there. Click on anyone. Yeah, click on environment variables. I have Java installed. Okay, it is installed Java, but okay, you have installed Java 11. Yeah. Okay, but now you have Java 8 also, so don't worry. Do one thing, just go, let it here, let it as Okay. it is. Okay, no, just let it open, don't touch it. Open a folder. Folder. Open a file explorer. Yeah, go to the C program files where you have just installed the Java right now. Yeah. That will be C. Yeah, C program files. And this is for all the persons whenever you are using the Java first time on your machine. Just first time you are using the Java on machine. So make sure your path should be set. Whether you are learning Java, Selenium, you are learning API, you are learning any other JMeter, anything you are learning. That is okay. So yeah, just not this one. Just copy JDK 1.8, this one. Double click on JDK 1. Double click on that.
not this one, the first one, JDK one. Yeah, double click, copy the path from above. Yeah, copy this whole path. Go to your environment variable window. Yeah, paste it here, whole paste it here. Yeah, okay, great. Okay. Now you will get a path here. No, don't click on OK. You will get a path variable just below down. PATH path variable is it? I'm able to see here. Yeah, click on it. Edit. Click on edit. And here you will do one thing. Go to, just make a new. Click on new and paste same thing here. And in the last slash and bin, right? Slash and bin. One more slash. Yeah, bin bin. Okay, great. Click on OK. Click on again OK. Okay, now OK. This one, environment variable OK. Great. Close this window. Now you don't need it. Okay. Now double click on that NetBeans. Now double click on NetBeans. Actually, what is happening? Whatever version I have shared with you, that is compatible with the Java 8. Okay. Okay. If you need, I can share you the another version, but I want to make sure that everybody should be on the same platform. Okay. Next. Okay. From here, everybody just listen. Java is mainly, I expect that Java will be stored in your machine. If it is not stored, you can say luckily Likita has shared us on this, you can say session that if the Java is not stored, you can create an account on the Oracle and then you just install the Java and then you can set the environment variable. After that, the first thing in terms of API, what you have to do, you have to install the NetBeans. So simply click on NetBeans, double click on that. And this window will be open and now we can start installing. Click on accept. Yeah. Next. Now you can see the path. Now you can see it is taking the path above NetBeans here. Below you have to change the path. JDK for NetBeans, browse and change the path of JDK. This one. Yeah. Open. Okay. Now it will start installing. Yeah. Click on next. Click on next. Okay, click on install, click on install. Okay, so it will take some time. Okay, definitely the system is really very good, but it will take some time. Okay, till the time we will do few other things. Okay, that we can run it parallel. So do one thing, just install the database part also. Not now. The last one you are able to see MySQL. This one, yeah. Double click on it. Click on next. Accept and next. And here just follow one by one what I'm saying that. Okay, because the thing is that if this thing will be corrupted installation, you will not able to install it again. Okay, so click on complete and then next, then you can say install. Yeah, so here just understand what we are doing there. Here we are just storing a database. Okay, like you can say in real API environment you need a database like Oracle. You can say some other database, like you can say what we are doing, we are for learning purpose we are using the small lightweight database, that is MySQL. Okay, so everything will be, you can say it is same database. Is it okay? Are you getting my point? We are just installing a database. Okay, if you have any stored database, you can use that one also. Okay, click on next. This is very lightweight, that's why we're installing it. Everybody is getting my point? Yes or no? Yes. Why we are? Because in my API I'm using the next. Click on next. Great. And click on finish. And wait, after click on finish, wait for some time. It will open another window. Yeah, click on next. Yeah, so here you can say standard configuration. Click on next. Yeah, very good. Include, click on the include checkbox. Include checkbox. Okay, here I want to tell you a very interesting thing. Right now you have seen that I have make an entry in the environment variable path. Yes or no? Nikita, have you focused? Just Yes, few. We have just created an entry for Java in path variable. So what happens that every time whenever any software is installed in your machine, it need to be set in the environment variable. So whenever you install, by default it make entry on that path variable.
While installing here, you are doing the same thing. You are giving the path of the server. Are you getting my point? Include bin directly. So this path will be automatically set to the environment variables. Okay, click on next. Because while installing, you should, okay, here you can actually choose a password. You are installing a database, so you need to choose a password. I will suggest a password, Pradeep. You can do anything, but what is happening here in my API, I'm trying to connect with the database, and that is using password Pradeep. So you can use that one. If you want to change, if you want to use someone some other thing, you have to remind it. Are you getting my point? Mm. Okay, so for I will suggest type PRADEEP. Small cases. Yeah, small keys. Yeah. Are you getting my point? That you are free to choose any password. But what is happening? I will share my APIs, and in that API, the credentials are Pradeep. Okay. Okay. Now enable that. This one, enable root access, and click on this create an anonymous account. We don't need it, but in the future, sometime you can need it. Click on next. And click on, no, you don't need to select anything. Click on execute. Automatically, it will start installing. Now, finger crossed. Let's see that it's installed automatically or not. So if sometimes, congratulations, it is installed. So click on finish. So what we have stored right now, we installed the database. What we installed database? Is it okay? Yes. So you know that everybody, this is not for you, for everybody. You know that in database, two things are. One is called database server and what is called database client. Anybody know the difference between these two? किसी को difference पता है कि database server और database client में क्या होता है? Guys, try to be interactive. देखो मैंने भी दिन भर ऑफिस में काम किया हुआ है, ठीक है? और मेरे पास आप लोग से ज्यादा काम होता है because I am handling 14 projects. ठीक है? Try to be interactive. Good. चलिए बताइए. That will be learning. देखो मैं directly I can simply install the things on your machine, but I want to make sure that whatever you are doing, you should have an answer for that, so that in the future somebody asks you can give the answer. Are you getting my point? Yes, sir. Yes. Okay. So two things are. Anybody know the difference between database server and database client? No, sir. Okay. Database server करता है. Actually, what is happening? Currently, I have installed a database server. Means a software is installed on your machine that is going to store the data. जब भी आप डेटा को स्टोर करोगे ना, वो टेबल जो बनती है, रिकॉर्ड्स जो बनते हैं, okay, that is called, you can say, yeah, Amit, today we are going to start with the setup and little bit about the, you can say, about the SOAP UI. So if you want to, if you have any urgent thing, you can continue from tomorrow. Okay. Okay, so yeah, so database, what do you mean by database server? Means some software is stored on your machine and it will hold some data like your tables, your columns, everything. Are you getting my point, Rahul, Inderjeet, Amit, Likta? So Yes, yes, sir. okay. Yes, yes. And second is that how you will able to interact with that. अब आप उससे interact कैसे कर पाओगे? Are you getting my point? जैसे आपको for example बताता हूँ, database installed on your machine. We can't see the database. लेकिन आप मुझे बताओ how you can fire a query. You need a interface. You need a platform so that you can fire the query. Create table, select a star from, something like that. You need a UI for that. Are you getting my point? Yes. For example, जैसे कि if you have used the Oracle, आप Oracle में कभी query fire करते हो, कैसे fire करते हो? How you fire a query in the Oracle database? कैसे करते हो? अच्छा, किसी ने कभी query fire की है? As a tester, you should have. You should have. आप कभी query चला के, कभी query चला के column name and mention some condition. Data So here update mention is the ready. table. but where you are running this query? कहाँ पे run करते हो? कहाँ पे लिखते हो query? In C On the console or or Yeah, one by Oracle one. or SQL Server. हाँ जी, very good. So whenever you are using a SQL developer is not a database server. SQL developer is a client for the Oracle database. Are you getting my point? उसके help से आप किसी database से connect होते हो. You just provide the credential. Like you can say, I have installed the database in my machine. अब इससे interact करने के लिए मुझे client चाहिए. So you will see in your लिखता in your software just below the NetBeans there is a software SQL Yog. Yeah. This one. So ये क्या है? This is client for the MySQL. ऐसे ही Oracle के लिए that is called SQL developer. ऐसे ही जो MSQL server होता है उसका अपने यहाँ
that comes inbuilt with the MS SQL server, उसको that is called MS SQL Server Studio. तो उसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक ऑन इट, इंस्टॉल इट। ये मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, I'm installing the client for the MySQL database। इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप उस पर इंटरेक्ट करना चाहो, you can open a command prompt, you can fire the query from there, but it is very tough to fire query from command prompt जैसे पहले होता था। अब तो सॉफ्टवेयर आ गया। क्लिक ऑन नेक्स्ट, एक्सेप्ट, click on next, click on next, yeah, next, and install. Yeah, click on next, finish, yeah, click on continue। अच्छा, अब देखो ये जब when the screen is coming to you, ये आपसे क्या मांग रहा है? When click on new, click on new, yeah, this one black, yeah, in the same screen just above the MySQL. Okay, it is saying some connection, you can give any name, like you can say Likita connection. It is just making a setting for you. Okay, you can give any name. Yeah, DB connection you can write, yeah. Okay, now you can see what is asking, ये क्या मांग रहा है आपसे? MySQL host। इसका मतलब MySQL host means maybe database installed on my machine, maybe this database installed on any other machine, so you have to give the IP of that machine। Are you getting my point? आपको पता है? अच्छा, tell me one thing, you try to run the query on your machine। Inderjit, tell me that thing from you, this question is from you। You are running the query on your machine, but where is the database stored? Database आपकी मशीन पे होता है कि किसी और मशीन पे होता है? सर किसी और मशीन पे on the server। That is from your machine। How you can connect to that? आप सबसे पहले in the MySQL host you give the IP of that machine, ठीक है? Then you give the username। उस मशीन पे वो कनेक्ट तो करेगा, लेकिन उस मशीन पे डेटाबेस का you have to give the username, that is root। हमारे केस में भी रूट है। Now password is that password हमने अब इंस्टॉल किया है, तो हम पासवर्ड हमें पता, that is Pradeep। So write Pradeep। Yes, sir। अब देखो इसमें लोकल होस्ट हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज डेटाबेस सर्वर इज आल्सो स्टोर्ड इन द सेम मशीन। अगर ये यहाँ इंस्टॉल नहीं होता तो मुझे लोकल होस्ट की जगह क्या लिखना पड़ता? आई हैव टू गिव द आईपी ऑफ दैट मशीन। लाइक अगर इंद्रजीत की मशीन में होता एंड यू कैन से क्लाइंट इज अवेलेबल ऑन माय लिखिता मशीन, तो लिखिता की मशीन से हम सर्वर इंद्रजीत की मशीन को कैसे कनेक्ट करेंगे? बाय गिविंग द आईपी ऑफ द दैट मशीन ऑन माय होस्ट। क्लियर है सबको? इज इट ओके? Yes, sir। Yes, sir. अगर क्लियर नो ना बताना, रीजन इज दैट दिस इज नॉट रिलेटेड टू द एपीआई ओनली, दिस इज वेरी मैंडेटरी बिकॉज यू आर फ्रॉम द टेस्टिंग बैकग्राउंड। तो आपको पता होना चाहिए डेटाबेस सर्वर क्या होता है, क्लाइंट। इससे मैं चाहूं तो किसी भी डेटाबेस को चेक कर सकता हूं इफ इट इज अ MySQL। अच्छा, डेटाबेस अभी हम कनेक्ट इसमें नाम नहीं डाल रहे क्योंकि अभी वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी डेटाबेस। डेटाबेस जो इंस्टॉल हुआ है बाय डिफॉल्ट है। क्लिक ऑन कनेक्ट, क्लिक से यस। अब देखो यहाँ पे आर यू एबल टू सी द फ्यू डेटाबेसेस? ये सारे डेटाबेस है, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL टेस्ट, दीज आर द डेटाबेसेस। अब यहाँ पे हम इन डेटाबेस को नहीं टच करेंगे बिकॉज दीज आर द डिफॉल्ट डेटाबेस। हम अपना एक डेटाबेस बना लेते हैं। सो गो टू द टॉप वन एंड यू विल सी देयर इज ऑप्शन DB on the top menu, file DB, and create database। click on create database। तो ऐसे ही मैं डेटा, हाँ, एंड यू कैन गिव द नेम ऑफ डेटाबेस प्रदीप। यहाँ पे भी नाम प्रदीप रख दो, PRADEEP, या क्लिक ऑन क्रिएट। देखो अब मेरा डेटाबेस बन गया। नाउ यू आर एबल टू सी द 4 डेटाबेस, यस और नो? अच्छा देखो मेरा पर्पस क्या है? आई वांट टू मेक श्योर दैट प्रदीप इज माय क्रिएटेड डेटाबेस एंड रेस्ट ऑफ द आर द इनबिल्ट डेटाबेस। तो किसी गलती से कोई डेटाबेस अपडेट ना हो जाए तो आप एक काम करोगे, when first time I connected to the SQL SQL Yog, I have not given any database name। अब मैं दोबारा कनेक्ट करूंगा, क्लोज इट, इसको क्लोज कर दो, इस सॉफ्टवेयर को क्लोज इट, क्लोज दिस सॉफ्टवेयर, क्रॉस and go to your desktop। your desktop should have the same SQL Yog icon। देखो आपके डेस्कटॉप पे कहीं SQL Yog लिखा हुआ है? Okay, you can type it from here, SQL, yeah, click on it। Acha, maybe from this side you are not able, I don't know what is the reason, from this side you are not able to open it। you can go and Yes, check on your desktop also, directly go to your desktop, that should be available because we have given an icon for that। Sir, window delete will minimize all the open windows। हाँ, yes, देखो, okay, okay, till the time you can see here, okay, now click on continue।
Now you are getting, you will see you are getting the same thing. Only database is blank this time. No, don't click on connect. This time give the database name. So what will happen? It will not connect to every database. It will connect to the simple specific one. Click yes. लिखता, are you getting my point? Yes. तो इस समय क्या है, मैंने सेफर साइड ये काम किया कि केवल अपने डेटाबेस से कनेक्ट किया. प्रीवियसली आई वाज गिवन द नेम ब्लैंक. अच्छा, ये डेटाबेस मैंने क्यों बनाया, व्हाई क्रिएटेड? इन माय एपीआईज आई विल ट्राई टू परफॉर्म द एक्शन ऑन दिस डेटाबेस, लाइक इंसर्टिंग रिकॉर्ड, डिलीटिंग रिकॉर्ड, अपडेटिंग रिकॉर्ड, लाइक द रियल एपीआईज वर्क्स. ओके, फॉर दैट पर्पस वी नीड अ टेबल ऑन इट, है ना. अभी तो ये डेटाबेस बनाया, बट वी नीड अ टेबल फॉर दैट, राइट? तो देखो, इन योर डॉक्यूमेंट्स आई हैव शेयर्ड अ table also. So before that, let me do one thing. Just go to this Eclipse NetBeans. NetBeans में देखो कितना हुआ. Finish. Click on finish. Okay. Okay. Now close this. You can say okay. You can do one. No. Don't close this. Go to your folder where you have downloaded all the documents. Here you will see a document below one, data script. There is a txt file, data script. Edit it. Yeah. Now do one thing, Control A, select everything. Yeah, copy. Yeah, go to here. Very good. And paste it here. Again, Control A, select everything and run. Yeah, click on it. Great. Now, if you will see that on the database, expand the database, Pradeep. Yeah, expand the data, Pradeep, and you will see able to see the table student. If you want to see that by default, this I have created this table with the help of these queries. You want to check that whether that table is properly working or not. So right side, delete everything in the query section and write a query to fetch every record. Now this is the test time. How you can fetch the every record from the table, student? Select a star from student. Awesome. Yeah, and run it, and you will able to see that one record is there. Are you getting my point? Yes. So you can do one thing. If you want, you can add one another record here again manually also. So you can do one thing. Click on +1. Click on plus. Here from the below one, the result. In the result, first of all, select just change read only to the something else. Student. Yeah. Click on student. Yeah. You can add a button there. Right side plus button is there. Plus. In the ID, write 2. Great. In the name, write what you can write your own name here. I want to show you this thing that this API is really going to work with this one. Here you can write your fake age. Okay. Here you can write the subject, REST API, anything you want to do. Yeah. Okay. Now, yeah, save it. Just right side of the plus button, there is a save button. Not this one. Yeah, this one. Save it. Okay. Now again, run the query. Now, if you run the query again, it will give us the result. Okay. Okay. Now this is done. This is done. So now close it. Database is done. Anytime, yeah, close this software. So now whenever you need to open the database, what? No. Yeah, no. So whenever you have to open the database, how you are going to open it? Or from the desktop, you will go to the SQL Yoga and then you can open it. Is it okay? Yes. So any query till now, kisi ko bhi query, you can tell me any query till now that we have installed the database and we have installed the NetBeans. So now go to the NetBeans. Just go and check your NetBeans on your desktop. There should be icon for NetBeans. Yeah, double click on it. Now the question is that database we installed. Reason is that in our API, I'm going to use the real database. Your API will able to add the record, update the record, delete the records. Now the question is that why we are using the NetBeans? What is the use here? So actually, what is the reason? I have already developed few APIs. Okay, I have already developed few APIs and using NetBeans. So I need this NetBeans so that I can, whenever I share you my API code, you can easily integrate with it. Are you getting my point? तो मैंने आपको NetBeans क्यों दिया? क्योंकि जो मैंने NetBeans जो API मैंने डेवलप किए हैं वो मैंने NetBeans की इससे कंपैटिबिलिटी के साथ डेवलप किए, तो यू कैन इजीली इंटीग्रेट इट. देखो मैंने अभी शेयर किया, आई विल शो यू क्या सब कैसे आप इंटीग्रेट करोगे. ठीक है. सो डू वन थिंग ऑन द लेफ्ट साइड फाइल. Let me check that your NetBeans is working fine or not.
file, new project, right? And you can Java web, click on Java web and click on Java web application. Yeah, click on next. Yeah, is it okay? Right side is selected, next. And you can give any, just wait for some time and just give. So I'm just creating a sampler project, okay? So that I can make sure that, okay, NetBeans is installed properly or not. So I'm just checking that one only. Okay, so you can say by default, it's showing you the name, project name, web application, and you can see the location. Are you able to see the project location? No. Yeah, copy this location. Okay, copy. Now click on next. And click on finish. So why I have copied that part to you? Because so that I just now I just confirm that whenever you are creating a project in the NetBeans, it is going to save in that location. Are you getting my point? तो जब भी आप NetBeans से कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कहां पर किससे हो रहा है, जो भी आपने लोकेशन कॉपी किया. So just open a file explorer. आपको रियल में टेस्टिंग करते वक्त सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा. ये सब आपको why you are able to paste it here and enter. तो जो प्रोजेक्ट आपका कहां पर ना यहीं पे सेव हो रहा है. इज इट ओके लिखिता? ठीक है, सबको क्लियर है? Guys, please raise the concern if you are not getting. I told you your time is precious, your money is precious. तो अगर किसी को समझ में आ रहा है, हाँ जी, हाँ जी. अब तक तो हो गई. Sorry, you are saying something? और खाना है अब. Yeah, tell me. Shrinkla, I think your mic is not working. Yes, so that is the reason I joined from phone, Pradeep. Like I could not, like my voice was not coming in the desktop, so I joined from phone. That's Okay, no worries. Tell me right now. You want to ask anything? why are we using SQL? I don't know. Like, is it a new database? I have not heard. No, that is not database. Actually, what is, okay, tell me what database you have used till now. MySQL. No, Code MySQL. was used. No, MySQL is a database, right? So it is a lightweight database. Maybe some persons have used the Oracle database. Some has used MS SQL Server. In the same way, MySQL is a database. So it is very lightweight. So for our learning purpose, we have installed it. Are you getting my point? If you have Oracle installed on your machine, you can go with that. Okay. Yeah, understood. Now, second thing is that what is SQL Yog? Whenever you installed any database server on your machine, you need a client to interact with it. How you can make a query, how you can fire a query on the database, like some fetching some records, inserting some record, okay, creating some table. So you need a UI software for that, and that is called database client. For example, SQL Developer is a client used for Oracle database. In the same way, SQL is used for MySQL. Are you getting my point? Yes. तो अगर आप if you don't want to use the client, देखो अभी भी क्या है, अगर मैं client use ना करूं तो पता है how you can interact with your database on your machine. You will open a command prompt and then you write a command for that, connect database, create table. So everything you are going to write on your black command prompt screen. So that is not so much comfortable. That's why we use some client software for that. ठीक है? Understood. Okay, great. So now second thing is that why we are installing the NetBeans, that is not needed in your case, but because I am just giving you my own developed API and you have to set up on your local machine so that you can use it easy. That's why. Otherwise, in the real life, you don't need to use the NetBeans. Even you don't need to deploy any web service. You will get the web services up and running. Okay, so that part I'm doing from my side. Okay, so that you can access my own developed API. Is it okay? Okay, sir. Okay, so this is, you can say, this is the location of the project NetBeans, where by default all the projects are created. Now, Likita, go to my document and you will see I have already shared. No. Yeah. Make it as it is. Now you see the project Pradeep JSON REST project. 3 projects are there. Okay.
And these are in the zip form, or you can say unzip. Yeah, I've extracted all the files. These are the zip. Just let me check. If they are zip, you have to extract it. Yeah, I've extracted all the files from Okay, you have personal already file. said great. You have done the great job. So do one thing. Go to init. Go to within student web application. Student web. Go to init. Copy this folder now. Copy this one. No, whole folder. Student web application. Copy whole folder. Okay, sir. Get this one. Copy it. This is actually my web service project. So go and paste in the NetBeans project folder where by default projects are created. So I will directly paste my project. Are you getting my point? तो देखो क्या आपके प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट कैसे बन रहे थे, यहीं पे बन रहे थे ना वेब एप्लीकेशन 1। मैंने अपने सिस्टम पे बना हुआ प्रोजेक्ट आपको यहीं पे बना के दे दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो ये प्रोजेक्ट आपको चल जाएगी, ये प्रोजेक्ट वेब सर्विस। ऐसे ही आई हैव शेयर्ड यू 3 वेब सर्विसेज, तो वहां पे 3 फोल्डर ऐसे बने। गो टू योर डॉक्यूमेंट। अगर आप इसको नहीं यूज करोगे तो डिफरेंस ये आएगा, यू हैव टू यूज योर ओन वेब सर्विसेज। आपको खुद भी यूज करनी, अंदर जाके ना अंदर जाके, नॉट दिस वन, अंदर जाके दिस वन यू हैव टू कॉपी। या सो आर यू गेटिंग माय पॉइंट राहुल? यू आर गेटिंग? Yes, sir. Yes. ये जो 3 प्रोजेक्ट के फोल्डर दे रहा हूं, दीज आर 3 वेब सर्विसेज। Okay. तो ये वेब सर्विस मैंने बना के रखी है, तो मैं आपको दे रहा हूं। नो अगेन गो टू इनिट। आपने एक्सट्रैक्ट किया, गो टू कॉपी इट। ग्रेट। ओके, नाउ ओपन, नाउ गो टू योर नेटबीन्स। अब इन प्रोजेक्ट को हम वी विल सी इट हियर। कैसे? क्लिक ऑन फाइल एंड जस्ट से ओपन प्रोजेक्ट and you will see, are you able to see the projects? Yes. Select one by one all the projects. Select first of all here, this one, open. Very good. So now you don't need to create the project. These project I have created my own. So ऐसे आपको करना, open all the 3 one by one. Great, you are doing the great job. Yeah, one. This is JSON based REST API, and now the third one, XML based. Yeah, open project and REST project. Okay, so okay, now these are the projects. So these are projects in the form of API. Are you getting my point? These are not the simple web application. These are the web services. So I will show you you can use these web services for your testing, and if you want, can get something from the internet. Is it okay? कहीं किसी को question है till now? सर इसमें आपने 3 प्रोजेक्ट से इंपोर्ट करे हैं, तो सर एक तो हो गया JSON फॉर्मेट, एक हो गया XML, if I'm correct. Yeah, you are correct. And last one is SOAP based API. SOAP आजकल कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बताऊं for the interview purpose, this is the very important. Actually, web services comes in 2 flavors. ये मैं भी आपको फिर से बताऊंगा। 2 फ्लेवर में आती है, एक वो होता है SOAP based and second is called REST based. जो SOAP based होता है, that is totally they have some condition, वो XML को ही support करता है. Now the REST comes in the REST comes again in 2 flavors, XML supported and JSON supported. तो एक्चुअली सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं? मेनली 2 टाइप की होती हैं, SOAP and REST is again divided in 2 parts, XML supported and JSON. Are you getting my point? Okay, sir. तो मैं आपको यहाँ पे बेनिफिट ये है कि यूजली आजकल लोग केवल आपको रेस्ट बेस्ड पढ़ाते हैं क्योंकि वो पॉपुलर है, लेकिन इन द इंटरव्यू दे आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड रेस्ट। अब आपने जब कभी देखा ही नहीं तो आप कितने अच्छे से बता पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर सर किसी एक चीज एक डाउट था, जैसे आप बोल रहे हो रेस्ट 2 पार्ट्स में, एक एपीआई में, सॉरी एक XML में और एक JSON में, तो इसका मतलब हुआ खाली जो मतलब जिस तरह से कोड लिखा गया है फॉर्मेटिंग का डिफरेंस होता है। मतलब जैसे JSON में हमें एक फॉर्मेट देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर फॉर्मेट इस में कोड रहेगा, तो XML मतलब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होगा? कोई डिफरेंस एकदम नहीं, यही बता रहे हैं, और दैट इज द बेनिफिट। मैंने डेवलप एपीआई क्यों किया मैं बताऊं। यू कैन से फ्रॉम इफ यू कैन से बिफोर 7-8 years मैं केवल एपीआई पढ़ाता था। सो व्हाट आई फेसेस द चैलेंज कि मैं एपीआई जब पढ़ाता था, सो दे अंडरस्टैंड दैट हाउ आई एम टेस्टिंग द एपीआई एवरीथिंग, लेकिन जब उनको डिफरेंस बताता था तो उनके सेम क्वेश्चन दे कम इनटू देयर माइंड कि ऐसा क्यों होता है कि XML बनाएगी JSON, तो क्या केवल इतना ही अंतर होता है? तो मैं उनसे कहता था हाँ केवल इतना ही अंतर। देन दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे थिंक कि केवल इतना अंतर कैसे होता है। नाउ यू हैव ए चांस, मैंने खुद डेवलप की है, सो आई विल शो यू द कोड आल्सो। मैं आपको कोड दिखाऊंगा इसका, ठीक है? कोड में सब कुछ सेम होगा। व्हाट इज द डिफरेंस? ओनली द फॉर्मेटिंग। ठीक। इवन यू हैव ए अपॉर्चुनिटी, मैं 2 में नहीं आपको 3 में डिफरेंस दिखाऊंगा। सोप सर्विस
रेस्ट एक्सएमएल सर्विस, रेस्ट जेएसएन सर्विस, इन तीनों सर्विस में सेम कोड लिखा हुआ है, ओनली डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेट। ठीक है, जी, थैंक यू। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अ चांस कि आप इसको खुद अपने सिस्टम पे रखो। जब आप एक्सप्लोर करोगे ना, आपको ये भी बताऊंगा व्हाई वी राइट इन द रेस्ट एपीआई, व्हाई राइट ए पाथ रेस्ट स्लैश स्लैश स्लैश, क्यों लिखते हैं ऐसा, व्हाट वी कॉल्ड इट। सेकंड थिंग इज दैट इन द रेस्ट एपीआई यू यूज द टर्म रिसोर्स। आप कभी किसी रेस्ट एपीआई वाले से बात करना, वो बोलेगा आई एम गिविंग यू द रिसोर्स पाथ, लेकिन जब सोप बेस की बात करोगे वो कहेगा आई एम गिविंग यू द विजडल ऑपरेशंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा क्यों बोलते हैं, हम इसको रट सकते हैं, लेकिन व्हाई यू आर ट्राइंग टू ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे, ट्रस्ट मी, यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट इन योर लाइफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, तो ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। टुडे आई विल गो विद द सेटअप पार्ट एंड ओनली शो यू कि जो मैं सेटअप करा रहा हूं हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, चलिए अब दिखाता हूं। दीज आर द एपीआईज कोड। तो सबसे पहले देखो, आप लोग के इंटरेस्ट के लिए पहले मैं रेस्ट को ही दिखाऊंगा। सर मेरा भी आप कल करवा दोगे ना? कल मैं पे कर दूंगी, एक्चुअली मेरी सैलरी कल आनी है, तो मैं ये पूछी थी आप सेटअप मेरा भी करवा दोगे प्लीज? नहीं, मैं बताता हूँ आप देखो ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताना, मैं आपका सेटअप करवा दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आप मुझे बता देना आप में से जो जो है, क्योंकि सेटअप मैं इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि आपका सेटअप, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा सेटअप का। अगर आपको कोई चैलेंज होता है तो आप मुझे बता देना, बट मेक श्योर कि कल जो और आप हो गए और आपके अलावा जो जो लोग हैं, ओके, जिनको भी है, जैसे इंद्रजीत आप भी ट्राई करना, सब लोग। अमित का मुझे पता है, अमित ने पहले ही जब बैच स्टार्ट हुआ था अमित ने कर लिया है। सुकेश आपने भी कर लिया आई थिंक ना, अमित ने, सुकेश ने, दीपिका ने कर लिया, लिखिता ने, इन्होंने रिसेंटली अभी मतलब यस सर है ना, तो हाँ लिखित, सर हाँ, तो बाकी जिन्होंने नहीं किया उनका हम एक बार कर सकते हैं, तो मैं आज लिंक शेयर कर कल दूंगा करने वाला कल। था। ठीक है, चलिए sure sir. चलिए। That will be through a paid UPI account through a mobile. It can be नहीं नहीं, done मैं through GPay. यूपीआई नहीं के थ्रू, दैट इज वी विल टॉक अबाउट द फीस आफ्टर दिस सेशन। हाँ, sure sir. ठीक है, दैट इज अनदर थिंग। मैं फीस और पढ़ाई को मिक्स नहीं करता। ठीक है, दैट हाँ, sure. ओके, चलिए आते हैं आप। सो नाउ लेट मी कम टू द प्रदीप रेस्ट प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। गो टू द सोर्स पैकेज, लिखिता यू कैन आल्सो आस्क द क्वेश्चन, आप भी पूछो। आपको तो आपके सामने मैं कर रहा हूँ, तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग, बिकॉज अगर आपको हर चीज का आंसर मिलेगा देन यू फील द कॉन्फिडेंस। ठीक है लिखिता, Yes, sir. तो आई हैव शेयर्ड दीज 3 एपीआई प्रोजेक्ट्स। आपको आपकी कंपनी में प्रोजेक्ट पहले से होंगे, कई डेवलप होंगे, एंड दे विल शेयर यू द यूआरएल फॉर द एपीआई। ठीक है, तो अब देखता हूं, मैं आपको इसको पूरा रन करके डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडेड या प्लस या दिस वन। सो हियर यू कैन से स्टूडेंट वेब सर्विस इज अ फाइल, दिस इन दिस वी हैव रिटन द कोड ऑफ वेब सर्विस, और इसके अंदर कोड लिखा है जिससे इट इज सपोर्टिंग द एक्सएमएल एंड सेम कॉन्सेप्ट। डबल क्लिक ऑन इट, देखो मैं कोड दिखाता हूं सबको, कोड भी दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं। यू विल सी द फर्स्ट फंक्शन देयर, दिख रहा है, एक फंक्शन दिख रहा है जिसका नाम है गेट ऑल स्टूडेंट्स। आर यू एबल टू सी एवरीबॉडी? हाँ जी, आप बहुत डिटेल में Yes. जाने, ये मैं सिर्फ आप लोगों उनके लिए इंटरेस्ट के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि वाकई कोड में ऐसा क्या डिफरेंस होता है। श्रृंखला, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी सर, बड़ा है कोड, थोड़ा देख रहे थे। तो आपको कोड अंदर आपका इंटरेस्ट हो तो क्यों देखना, क्योंकि मैंने आई हैव सम, आई एम आल्सो फ्रॉम द टेस्टिंग बैकग्राउंड, लेकिन मुझे जावा, चूंकि मैं जावा पढ़ाता हूँ, मुझे सेलेनियम पढ़ाता हूँ, रेस्टोल पढ़ाता हूँ, और जेमीटर, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आई एम जस्ट टीचर, तो आई कीन इंटरेस्ट किया अगर मैं थोड़ा सा जावा को यूटिलाइज करूं अपनी स्किल को, चीजों को बनाने। मैंने सेलेनियम की भी वेब एप्लीकेशन बनाई, जिन्होंने सेलेनियम पढ़ा उन्हें पता है, मैं खुद की वेब एप्लीकेशन बना के उस पर आई जस्ट ट्राई टू गिव द सेशंस ऑन दैट। तो यहाँ पे कोड का आपको क्या फायदा है, अगर आपकी जावा थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाएगी, यू कैन मेक द मॉडिफिकेशन। चलो एक काम करते हैं, वेब सर्विस का लॉजिक ही चेंज करते हैं। इट इज गिविंग सम डिफरेंट डेटा, आई वांट टू गिव सम डिफरेंट डेटा। ठीक है, लेकिन यू डोंट नीड इट, आपको जरूरत नहीं है, दैट इज जस्ट फॉर योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यार गेट ऑल स्टूडेंट क्या है, ये फंक्शन को कॉल करेगा, वो इसके अंदर कोड, कोडिंग थोड़ा टफ हो जाती है। तो वी हैव जस्ट मेंशन द कोड हियर, ये मैंने कोड खुद लिखा है। इसके अंदर अगर लाइन नंबर 49 पे देखो, आर यू एबल टू सी लाइन नंबर 49, तो देखो रिजल्ट इक्वल टू कुछ एक्सएमएल बना रहा हूं ना मैं, Yes, sir. ओके, एक्सएमएल बना रहा हूं। अगर यही कोड मैं आपको दिखाऊं, इसी का फ्लेवर, प्रदीप जेसन प्रोजेक्ट को जरा एक्सपेंड करो, क्लिक द प्रदीप जेसन प्रोजेक्ट, द अबव वन ऑन द सोर्स पैकेज एंड गो टू दिस वन। दोनों में सेम कोड लिखा है मेरे, सेम स्टूडेंट वेब सर्विस, एक्सपेंड स्टूडेंट सर्विस, नॉट दिस वन, स्टूडेंट वेब सर्विस। और यहाँ पे देखो सेम, आप देख रहे सेम कोड लिखा है, केवल लाइन नंबर 50 पे देखो मैंने क्या लिखा है, जो रिजल्ट है उसमें एक्सएमएल डेटा बना रहा हूँ कि जीएसएन डेटा। श्रृंखला, आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
हाँ जी सर। जब ये डेटा जो मैं क्वेरी, मेरी सेम क्वेरी अगर आप देख लो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्ट्रिंग, लेकिन जब मैं डेटा को रिजल्ट करवा रहा हूं, सो आई एम जस्ट सपोर्टिंग द जेसन फॉर्मेट। और इसके लिए मैंने फंक्शन में लाइन नंबर 33 पे क्या लिखा है, मीडिया टाइप डॉट एप्लीकेशन जेसन। JSON। अगर आप मेरी उस वेब सर्विस में जाओगे वेयर इट इज रिटन रेस्ट प्रोजेक्ट, उसमें लिखा है एप्लीकेशन डॉट एक्स। तो ये देखो बाकी सारा कोड सेम होता है। अगर रेस्ट की, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ 2 फ्लेवर्स, हाँ अगर मैं सोप में चला जाऊंगा, व्हेन वी आर टॉक अबाउट द सोप बेस्ड एपीआई, तब वो बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आपका वेब सर्विस में, दैट इज नॉट ए कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट, व्हाट यू विल से, कि आपका ना उसमें गेट मेथड होता है, ना उसमें फंक्शन का नेम इंपॉर्टेंट होता है, उसमें इंपॉर्टेंट होता है विजडम। व्हाट इज ऑपरेटर विजडम। तो वो मैं आपको बताऊंगा, दैट डोंट वरी अबाउट दैट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कि व्हाई व्हाटएवर आई हैव गिवन यू, व्हाई आई हैव इंस्टॉल्ड द डेटाबेस इन योर मशीन। क्यों इंस्टॉल किया, यू विल गो टू द लास्ट ऑफ दिस कोड, स्टूडेंट वेब सर्विस के लास्ट में चले जाओ, बिल्कुल लास्ट फाइल में, फाइल के एंड में, और थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करना, थोड़ा सा स्क्रॉल डेटाबेस आप यहाँ पे देखो, लाइन नंबर 202 पे देख रहे हो, मैंने एक डेटाबेस कनेक्शन बना रखा है। आर यू एबल टू सी? Yes sir. अगर किसी को डेटाबेस कनेक्ट करना आता है तो उसको पता है दिस इज द कॉल्ड फॉर द JDBC, दिस इज कॉल्ड JDBC कोड, जावा डेटाबेस। इससे हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। इफ यू आर नॉट, यू कैन सी, इफ यू वांट टू गेट द डिटेल ऑफ दैट, आप मेरे चैनल पे चले जाना यूट्यूब पे, उसमें एक मेरे ख्याल से 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, हाउ यू कैन कनेक्ट टू द डेटाबेस, और 10-15 मिनट का बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है एवरी डिटेल की, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मैंने वाई लिखता है, टोल्ड यू दैट यू शुड यूज द प्रदीप डेटाबेस पासवर्ड, क्योंकि मेरे कोड में प्रदीप था। अगर आप उसका नाम कुछ और रखते तो आपको मेरे कोड में यहाँ पे जाके करना पड़ता, यू हैव टू मॉडिफाई। गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. तो अगर कोई डेटाबेस को इंस्टॉल करते वक्त, सपोज टेक द एग्जांपल, श्रृंखला इज इंस्टॉलिंग द डेटाबेस, और इंस्टॉल करते वक्त उन्होंने अपने पासवर्ड का नाम रख दिया वहां पे मिश्रा, सपोज टेक द एग्जांपल, तो आपको मेरे कोड में आके डेटाबेस का पासवर्ड क्या रखना पड़ेगा, श्रृंखला मिश्रा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए, बाकी आप देखो लाइन नंबर 204 में मेरे यूआरएल में लिखा है, डेटाबेस का नाम क्या लिखा है, JDBC MySQL लोकलहोस्ट 306 और प्रदीप। तो आपको जिस डेटाबेस से कनेक्ट करना है उसका जो पासवर्ड है यहाँ लिख दो, आपको ना करना पड़े, दैट्स व्हाई आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द सेम नेम एंड सेम पासवर्ड। ठीक है, दैट इज द जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पार्ट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इट, जब भी आप ये कोडिंग करोगे तो कोडिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इट विल ट्राई टू कनेक्ट विद द डेटाबेस, फॉर दैट पर्पस यू नीड ए जार, एक जार चाहिए। वो मैंने जार आपको क्या रखे, आई ऑलरेडी शेयर्ड द जार विद यू। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट। तो क्या करो, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर कोलैप्स कर दो, जस्ट कोलैप्स एवरी प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट को कोलैप्स कर दो, या पहले सारे को कोलैप्स करो। हाँ, अब इसको रहने दो। क्लिक ऑन लाइब्रेरीज, अंडर दिस टेस्ट पैकेज देयर इज अ लाइब्रेरी, यहाँ क्लिक करो, और यहाँ पे लाइब्रेरी के ऊपर राइट क्लिक करो, लाइब्रेरीज के ऊपर राइट क्लिक, मेक अ राइट क्लिक and say add jar folder, add jar, और यहाँ पे go to that location where you have downloaded all my resources, जिस जगह पे आपने सारे resources मेरे डाउनलोड किए वहां पे आप चले जाओ, and there I've shared your jar also। यहाँ पे जार दिख रही होगी MySQL connector, ठीक है, open it। Same thing you have to do in all the projects, because in all the projects I'm using the code of JDBC, Java database connecting code के लिए आपको ये जार चाहिए होते हैं हर प्रोजेक्ट में। प्रदीप प्रेस प्रोजेक्ट में जाइए, go to प्रदीप प्रेस प्रोजेक्ट, या same right click on libraries, just libraries, add jar folder and give the same one, या bin one, open। और ऐसे ही करेंगे आप किसमें, एक प्रोजेक्ट और बचा है, कौन सा, या तो ये मैंने क्यों किया, why I added this jar, क्योंकि this jar is contains the classes which is helping you in connecting the database। अब आपके तीनों प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं, तीनों का वो कर दो, कोलैप्स कर दो, फिर से कोलैप्स एवरीथिंग। लिख दो, you are so comfortable in Hindi sometimes। Yes sir, I can understand Hindi. I will use only sometime, don't worry about that, you can say। No sir, कोई बात नहीं, मुझे नहीं आती है।
Okay, great, great. चलिए, अब हमने क्या किया, we have just configured the project here. Now we have to run it. अब इसके जो आपको URL मिलते हैं, how you get the URLs from the companies. कंपनी में URL बोलते हैं ना, ये API का URL है. तो वो क्या होते हैं, they deployed the project on the server, and when the server is up and running, then the URLs are generated. तो मैं इन तीनों प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करूंगा एक सर्वर पे. अब मुझे उस सर्वर को डिप्लॉय करने के लिए I need a JBoss, I need a Tomcat. These type of server, ये बहुत heavy होते हैं. So that's why I use a lightweight server. जैसे सर्वर होते हैं ना, JBoss, Tomcat और IBM का WebSphere, so I've used a lightweight, that is called Glassfish. और मुझे कहीं इंस्टॉल भी ना करना पड़े, इसी प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर, प्रदीप रेस्ट प्रोजेक्ट के ऊपर राइट एंड क्लिक ऑन डिप्लॉय. अब डिप्लॉय, जब आप डिप्लॉय करोगे, यू विल एबल टू सी राइट साइड इन द राइट बॉटम कॉर्नर हेलो वर्ल्ड डिप्लॉय करके आ रहा है, और एक आइकन दिख रहा है ग्लासफिश 4.1.1. आर यू एबल टू सी दिस वन? क्लिक ऑन इट. तो ये क्या कर रहा है आपका, जैसे जस्ट लाइक यू हैव ए अलाउ एक्सेस, जस्ट लाइक यू हैव ए सर्वर्स JBoss, Tomcat, Apache, WebSphere, ऐसे ये भी एक सर्वर है. ये थोड़ा लाइटवेट होता है, तो पीपल यूजुअली यूज इट फॉर लर्निंग पर्पस. ठीक है. Are you able to see the last line in this server? Pradeep REST project was successfully deployed. आ गया? ठीक है. चलिए, अब मैं आपको दिखाता हूं. अब आप अपने जाना डॉक्यूमेंट के पास, जहां आपके डॉक्यूमेंट पड़े. There I have shared you the document that you will get in case of your company also. जहां पे इसमें डॉक्यूमेंट पड़े, 3 डॉक्यूमेंट नीचे दिख रहा है. एक दिख रहा है REST URI, इसको पहले ओपन करिए. इसके अंदर I have shared you the URL. In your company, your testing will be start from here. आपकी टेस्टिंग यहीं से स्टार्ट होगी. They will give you the URL की URL है, and these are the detail. They will try to give the detail or not, that is totally depend on your company कि वो कितनी डिटेल देते हैं. जितनी ज्यादा डिटेल देंगे, your learning will be easy. यहाँ पे मैंने आपको सबसे कम डिटेल इसलिए दिखा रहा हूँ कि कम से कम डिटेल में भी आपको कैसे मैं बताऊंगा कि आपको करना है. अगर ज्यादा डिटेल दे दी, that is good for you. ठीक है. So यहाँ पे copy the first URL till HTTP only. Yeah, copy it and open any tab on your browser. और आपको दिखाता हूँ कि देखो API आपको रिकॉर्ड दे रही कि नहीं है, and paste it here. It should give the result which is in your database. मिल रहा है आपको 2 डेटा. ये रिकॉर्ड आप ही के पास है, लिखिता मेरे पास तो नहीं है. तो ऐसी एक API का और एग्जांपल बताता हूँ. इसी URL में स्लैश करके लिखो 2/2. तो ये आपको कौन सी आईडी देगा? जो 2 आईडी, नॉट दिस वन, दूसरा वाला स्लैश. देखो केवल 2. तो आपको केवल अपनी रिकॉर्ड दिख रहा है. अगर आप स्लैश में 1 लिखोगे तो पहली आईडी का रिकॉर्ड दिखेगा. So this it means your API are up and running. करो /1 / करके 1. अब देखो ये डेटा आपको किस फॉर्म में देना है? XML. Are you getting my point, शिकला? राहुल? सर इसी में एंड पॉइंट क्या होता है वो भी बता दीजिए. एंड पॉइंट मैं आपको बताऊंगा. एंड पॉइंट क्या होता है आपको, जब मैं एंड पॉइंट दिखाने के लिए पूरा, अभी तो मैं आपको कन्फिगरेशन दिखा रहा हूं. अभी मैं आपको दिखाऊंगा SOAP UI, जहां इसको कॉन्फ़िगर करूंगा. रेस्ट एश्योर्ड में जब बताऊंगा कोडिंग पार्ट से, तो आपको प्रॉपर बताऊंगा इसको एंड पॉइंट कहते हैं, क्यों इसको रिसोर्स कहते हैं. ठीक है. ओके. एवरीथिंग में एंड पॉइंट बताऊंगा, रिसोर्स क्या होते हैं बताऊंगा, पैरामीटर्स क्या होते हैं. पैरामीटर भी आपको पता है कितने तरह के पैरामीटर होते हैं जो /1 लिख रहे हो. एक होता है क्वेरी पैरामीटर, एक होता है पाथ पैरामीटर. दोनों में डिफरेंस होता है. आई विल टेल यू एवरीथिंग. चलो ये कॉन्फ़िगर हो गया. अब चेक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. जाओ, गो टू योर डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट मैंने दिया था आपको, रेस्ट का भी दिया है. इसके ठीक नीचे लिखा, इसको ओपन करो. सर ये API के टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं? अब वो टेस्ट केस मैं आपको बताऊंगा, वही तो कह रहा हूँ. अभी तो मैं आपको सेटअप करा रहा हूँ. आज आपको ये बता रहा हूँ कि देखो आपके पास API खुद की लोकल है. लिखिता कल को लिखिता किस मशीन पे इंटरनेट नहीं भी चल रहा है ना, तो API चलेंगी क्योंकि इनकी लोकल मशीन पे. कॉपी द फर्स्ट URL और इसको भी एक टैब पे डालो और देखो इससे रिजल्ट आ रहा है कि नहीं. इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा सेम रिजल्ट, लेकिन JSON फॉर्मेट में. एक टैब और करो बगल में. या अच्छा अभी नहीं आ रहा, मैं समझ गया क्यों नहीं आ रहा. डोंट वरी अबाउट दैट. गो टू योर व्हाट यू से, गो टू योर Eclipse. सॉरी Eclipse कह रहा हूँ, सॉरी NetBeans. और यहाँ पे जो आपका JSON प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इस पे भी डिप्लॉय करो. डिप्लॉय. अब इसको डिप्लॉय होने. एक बार आपको ऐसा करना है. नेक्स्ट टाइम जब आप NetBeans खोलोगे ना, ग्लासफिश पे क्लिक करो. ग्लासफिश सर्वर पे उसी के बगल में हाँ दिखाएगा. देखो ये भी डिप्लॉयड सक्सेस हो गया. जो आपने इसको रिफ्रेश करो, जो आपने URL डाला था टैब में,
अभी जो टैब में यूआरएल है उसको रिफ्रेश करना। आर यू गेटिंग द रिजल्ट्स? Yes. केवल इसका फॉर्मेट अंतर, आप चाहो तो अगल बगल दोनों को टैप करके देख लो, या यहीं पे दिख रहा होगा, एक स्टूडेंट आपको 1 दिख रहा है प्रदीप सब्जेक्ट, आपका दूसरा लिखिता दिख रहा है। Yes. इसका फॉर्मेट डिफरेंट है, ये जेसन में और वो एक्सएमएल में। ठीक है, ओके सर। ठीक है। तो देखो दो तरह की, तीसरी आपको एपीआई मैं इसलिए नहीं दिखा सकता ब्राउजर से, क्योंकि ब्राउजर से सारी तरह की एपीआई नहीं चलती है। ब्राउजर से वी कैन रन ओनली दोज एपीआई दैट सपोर्ट द गेट मेथड। अभी आप वो भी कंफ्यूज हो गए कि प्रदीप ये गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, पुट क्या होता है, अपडेट क्या होता है, एवरीथिंग आई विल टेल। ठीक है, तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया, मैं मेक श्योर कर रहा हूं योर कन्फिगरेशन इज डन। ये पार्ट हो गया कंप्लीट, ये हो गया। अब आते हैं जावा की जो कोडिंग है उसके लिए यू नीड इक्लिप्स। तो आई होप इक्लिप्स आपके मशीन पे होगा। इक्लिप्स नहीं है तो इक्लिप्स आप इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। और अगर यू नीड इट आई विल शेयर द लिंक कि कौन सा इक्लिप्स आपको करना है, ठीक है। इज इट सर ओके? एक डाउट था हाँ जी बोलिए। सर, जैसे ये ना आपने वो यूआरएल कॉपी कराया, हमने इसको ब्राउजर में पेस्ट किया और हमें ये डिटेल्स मिल गए, स्टूडेंट का आईडी और जितना सारे डिटेल्स स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 का। तो जैसे सर ये ना मतलब मैं ना एक एप्लीकेशन यूज करती हूँ स्वैगर। तो हाँ, आपने मतलब मुझे ना फ्लो समझना था, जैसे ये आपने डेटाबेस से यूआरएल लिया या आपने तो हम मतलब इसमें ना मेरे को पूछना था, जैसे ये हमें उसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस मिलता है, तो ये रिस्पांस है ना जो हमको दिख रहा है। तो और आपके जो यूआरएल डाल रहे हो ये रिक्वेस्ट है। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है, देखो आप अपने डॉक्यूमेंट पे जाना जरा, लिखिता कैन यू गो टू द डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट अभी नोटपैड में खुला रखा है, किसी को भी खोल, रेस्ट जेसन वाले को खोल लो या उसको खोल लो। किसी भी रिक्वेस्ट को डालने के लिए आपकी सबसे पहले कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ एपीआई। अगर आपकी गेट बेस्ड एपीआई है सो यू नीड ए यूआरएल और केवल मेथड गेट, आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। ओके जी सर। इसका काम होता है डेटा को फेच करके लाना। दूसरी जो एपीआई होती है उसको बोलते हैं पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है व्हेन यू वांट टू ऐड सम डेटा, व्हेन यू वांट टू क्रिएट सम डेटा। तो जब हाँ डेटा देते हैं तो उसमें एक यूआरएल होता है, एक मेथड होता है पोस्ट, साथ में वो डेटा भी तो दोगे ना जो आप डेटा डेटाबेस से सेव करना जी चाहते जी हो। सो दैट्स व्हाई इन दैट केस यू हैव टू पास दैट डेटा। अब वो डेटा पास कैसे करते हैं, वो डेटा कहाँ पास करते हैं, दैट डेटा इज पास्ड इन द स्पेशल पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट दैट इज कॉल्ड बॉडी। कहाँ पास करते हैं, बॉडी। बॉडी जी। अब बात आती है एक और पार्ट होता है आपकी सर्विस का। अब मैं इसलिए बहुत ज्यादा इसलिए बताना चाहता हूँ कि बिकॉज यू हैव लिटिल बिट वर्क ऑन दैट, बट मे बी सम पर्संस आर नॉट वर्क ऑन दैट। वो कंफ्यूज होंगे, बॉडी होता है। अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा, हेडर। अब हेडर क्या होता है, जब भी whenever you are sending a request, a header is actually automatically go with the request and header contains the information कि आप भेज क्या रहे हो, किस तरह का डेटा भेज रहे हो। ये जो आप डेटा जब आप एक्सएमएल का भेजोगे ना तो ऐसा नहीं आप डेटा ऐसे भेज दोगे, आपको हेडर में बताना पड़ेगा कि मेरा डेटा कैसा है, एक्सएमएल। एंड यू विल टेल इन द हेडर कि मेरा डेटा इस समय क्या है, जेसन। तो ये जेसन का जो डेटा है एक्सएमएल, इसको सेट करने के लिए यू हैव टू प्रिपेयर अ रिक्वेस्ट। एक पूरी रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है आपको। वो रिक्वेस्ट कैसे बनती है, टूल आपको रिक्वेस्ट बनाने के लिए ऑप्शन देते हैं, एंड इन जावा कोड यू हैव फ्यू फंक्शंस फॉर दैट, ठीक है। नहीं सर, मेरा मतलब ना मैं आपका पार्ट समझ गई। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे ना ये हमने जब आपने आपने यूआरएल कॉपी करवा के ब्राउजर पे खोल दिया, तो मतलब हमें किसी टूल की जरूरत नहीं होती, मतलब हमें इसको चलाने है क्योंकि मैं बताऊं टूल, वही मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आपकी एपीआई में गेट वाला मेथड होगा तो वो आपके ब्राउजर के यूआरएल से चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी एपीआई पोस्ट मेथड यानी गेट के अच्छा अलावा कोई भी मेथड हाँ उसका, इसीलिए तो मैं बताऊं पोस्टमैन जो होता है, पोस्टमैन एक्चुअली कुछ नहीं है। पोस्टमैन एक ब्राउजर ही तो है, बस वो आपको क्या देता है, अपने ब्राउजर में एक मेथड का ड्रॉप डाउन देता हूं जिससे आप मेथड चेंज कर सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? समझ गई जी सर, तो थैंक यू जी। अगर आपकी कोई भी जिंदगी में कोई भी गेट बेस्ड एपीआई होगी, आपको कोई टूल की जरूरत ही नहीं है, यूआरएल हिट करो और उसका ले लो। अब देखो उसमें मेरी 2 एपीआई गेट वाली हैं, एक दूसरे देख रहे हो, जी गेट स्टूडेंट बाय आईडी। हाँ हाँ ठीक है सर, मैं इसमें वही कर नहीं मुझे नहीं लगा नहीं कि नहीं नहीं ये तो बिना बिना टूल के ही चल गया। अच्छा नहीं मैं नहीं नहीं। हाँ ठीक बात जी अगर जी। अगर गेट के अलावा ये तो मैं आपको सिर्फ टेस्ट के लिए बता रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है, ठीक है। और हर उसके लिए आपको मेथड चूज करना पड़ता है। टूल में कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन होगा। अगर आपको गेट एपीआई टेस्ट करनी है ना तो जिंदगी में किसी टूल की जरूरत ही नहीं है, ब्राउजर में यूआरएल डालो और उसको टेस्ट करो। समझ गए?
जी चल ये मैं अभी कह रहा हूँ, आप डोंट वरी, जब मैं सोपियाई स्टार्ट करूंगा ना, आज तो मुझे नहीं लग रहा स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं नेक्स्ट सेशन में सोपियाई स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले आपको यही दिखाऊंगा कि वहां पे जो टेस्ट कर रहे हैं तो क्या एंड पॉइंट होता है, मेथड क्यों सिलेक्ट करते हैं, क्यों पोस्ट करते हैं, और उसकी जरूरत क्या पड़ती है। ठीक है चलिए ठीक है, अब आते हैं, ये पार्ट हमारा हो गया, मतलब हमारा कंफ्यूजन पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना था, हाँ या अब करते हैं क्या कि पहला टूल जो हम करेंगे, पोस्टमैन तो बहुत बहुत मैं उसको मानता हूँ कि बहुत चीप सी चीज है कि जिसको कोई भी आसानी से पढ़ सकता है। स्टिल यू वांट, इन माय चैनल आई पुट फ्यू वीडियोस ऑन द पोस्टमैन, मैंने पोस्टमैन पे एक वीडियो सेट डाला हुआ है एंड आई एम प्लानिंग टू सीरीज ऑन दैट, लेकिन अभी मेरे पास टाइम की थोड़ा वो है। एक वीडियो पढ़ा आपको पता चलेगा पोस्टमैन बहुत बड़ी चीज है नहीं, बहुत छोटी चीज है। SOAP is a big tool, SOAP UI, and Restitude is a main thing that is you can say demand in the market. ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। यू कैन गेट द फ्लेवर ऑफ द SOAPUI टूल। अच्छा, SOAPUI टूल से भी लोगों को एक बहुत डाउट होता है, उसका नाम SOAPUI है, सो पीपल थिंक अबाउट दैट इट इज ओनली एबल टू टेस्ट द पोस्ट API। सबको लगता है इसका इस्तेमाल क्या होता है, SOAP API के लिए। नहीं नहीं, SOAP टूल का नाम है, लेकिन उससे कौन सी API टेस्ट होती है, बोथ SOAP और REST। Is it okay getting my point? हाँ जी, yes or no, कुछ तो बोलो। यस ठीक है, तो वो लोगों को इसलिए, अच्छा ऐसा नाम क्यों था मैं बता दूं, क्योंकि पहला ऐसा टूल जो केवल एपीआई की टेस्टिंग के लिए बना था, और आज से कम बताऊं, सोपे आज का नहीं, कम से कम मुझे अगर याद हो तो कम से कम 13-14 साल पुराना तो टूल है ये। तो जब ये बना था, ये एपीआई को टेस्ट करने के लिए बना था, तब कोई एपीआई टेस्ट करने के लिए टूल ही नहीं था, तो उसने उस समय जो सर्विस चलती थी दैट वाज ओनली सोप बेस्ड, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया सोप। अब बाद में एपीआई आ गई रेस्ट भी मार्केट में, तो उन्होंने टूल का नाम अपने नहीं बदला, इन्होंने टूल का नाम वही रखा बिकॉज दैट वाज वेरी वेरी पॉपुलर, लेकिन उसके अंदर क्या डाल दिया कि इससे रेस्ट भी टेस्ट करो। लेकिन अब इसके फ्लेवर आ गए, एक आता है सोप फ्री वर्जन, एक आता है मिड वर्जन दैट इज कॉल्ड सोप प्रो, और एक सबसे कॉस्टली वर्जन आता है जो इंडिया में जल्दी लोग लेते ही नहीं। बाहर इसकी बहुत डिमांड है। जो मेरे पहले स्टूडेंट है, मोस्टली जो स्टूडेंट बताऊं आपको, जो मैं पढ़ाता था करीबन 7-8 साल पहले ना, तो मोस्टली स्टूडेंट मेरे आते थे जो ऑस्ट्रेलिया जाते थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए टूल इट इज वेरी डिमांड इन द मार्केट, और वो खुद की पीआर लगा के और इतना पैकेज देते थे, उस समय आप सोच भी नहीं सकते, दैट वाज द वेरी वेरी कॉस्टली टूल। ठीक है, तो आज के टाइम में भी इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन अच्छी लेवल की कंपनियां इसको यूज करती है सोपीआई टूल को। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वर्जन है दैट इज कॉल्ड रेडी एपीआई। किसने सुना है, रेडी एपीआई करके टूल आता है, आप देखना। सो 3 टूल आते हैं, सोपीआई फ्री वर्जन, सोपीआई प्रो वर्जन और सोपीआई रेडी एपीआई। तो मैं जो आपको पढ़ाऊंगा प्रो वर्जन, जो बीच का वर्जन है वो भी लाइसेंस्ड होता है, वो आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो दैट आई हैव ऑलरेडी तो गिवन। सोप वो नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है? नहीं, सो मैंने बोला ना, थ्री इट कम्स इन 3 वर्जन्स। एक आता है आपका फ्री वर्जन, ओपन सोर्स नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको फ्री एक वर्जन आता है, उससे बहुत टेस्ट करते हैं, आज भी मार्केट है, बहुत डिमांड है उसकी। दूसरा मिड वर्जन आता है, और तीसरा तो रेडी है बहुत, क्योंकि वो तब चाहिए होता है कि उससे बहुत बड़ी बड़ी टेस्टिंग कर सकते हैं आप, मतलब कैसे, यू कांट इमेजिन कि एपीआई के अलावा भी बहुत फ्लेवर्स आते हैं, वो सब एपीआई की सिक्योरिटी टेस्टिंग भी एक अलग चीज होती है, दैट इज वेरी वेरी कॉन्क्रीट पार्ट। तो वो बहुत बड़ा लेवल था, उसको तो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन सोपिया का फ्री वर्जन की बहुत मार्केट में डिमांड है। ठीक है, और साथ में रेस्ट एश्योर्ड, 2 चीज का कॉम्बिनेशन है। मैं हम आपको लोग तो फ्री वाले में ही प्रैक्टिस करेंगे सर, मतलब हम तो फ्री वाले से नहीं। हाँ बिल्कुल फ्री मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आप फ्री वाले पे भी करो, और मैं आपको पेड वाला भी दे रहा हूँ लाइसेंस, आप दोनों को इंस्टॉल करना। तो आपके लिए बेनिफिट क्या है कि आपको ये भी दिखाऊंगा कि फ्री वे में जो है काम कर रहे हो और जो पेड में कर रहे हो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके जी। चलिए अब आते हैं वापस। तो फ्री वाला मैं आपको, अगर जाओगे डाउनलोड करोगे, पेड में आपको दे, और दोनों एक साथ डाउनलोड भी कर सकते हो और इंस्टॉल भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो गो टू योर इंस्टॉलेशन फोल्डर जहां पे डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे एक आपको सॉफ्टवेयर दिखेगा, एक फोल्डर दिखेगा टॉप पे, क्रैक्ड सोपियर। अच्छा, ये मैं देता नहीं था, ये मैं कब क्यों देना शुरू कर दिया बताऊं। पहले मैं सोपिया के फ्री वर्जन पे ही टोटली पढ़ाता था, बाद में क्या हुआ, मेरे एक स्टूडेंट था, उसने उसकी कंपनी में इस काम होता था प्रो पे। ठीक है, तो उसने मुझसे बोला कि सर मेरे को आप प्रो पढ़ा दो, क्योंकि उसने कहा प्रो पढ़ा दोगे तो मेरा बाहर का वीजा लग जाएगा। तो मैंने उससे बोला है मैं प्रो तो पढ़ा दूं आपको, लेकिन लाइसेंस वर्जन में पढ़ा दूंगा, उसके लिए मुझे अलग से एफर्ट करना पड़ेगा, अलग से आपको क्लास देनी पड़ेगी, क्योंकि मैं फ्री वर्जन पढ़ाता हूँ। तो उसने कहा कि सर, मतलब उसने कहा कि सर फिर पढ़ा दो। तो मैंने कहा एक शर्त और है, कि मैंने कहा आप तो जा ही रहे हो, ये सॉफ्टवेयर मुझे दे जाना। ठीक है, तो उसने मुझे उसकी क्रैक की बना के दी है, तो ये बिना सर ने लाइसेंस, गुरु दक्षिणा ले ली।
अब मैंने दक्षिणा ले ली, सही कहना। तो मैंने एफर्ट किया, लेकिन ही वाज वेरी, वो आज भी मतलब मेरे से कनेक्टेड है। तो उसने मुझसे हाँ। बोला भी, उसने बोला सर कोई बात नहीं, क्रैक्ड वर्जन ही बीच का वर्जन है, आपको मैं इसकी की क्रैक मेरे पास है वो मैं आपको देता हूँ। तो इसकी क्रैक की मेरे पास है, और आज से फायदा ये हुआ कि इससे इतने पैसे मैंने कमा लिए कि मतलब सोपीआई फ्री वर्जन तो आप पढ़ते ही हो, मैं पेड वर्जन ही पढ़ा देता हूँ फ्री में, तो उसी कोर्स में रहता है, तो लोग अच्छा भी बोलते हैं। और सही कह रहे हो, आई हैव टेकन द गुरु दक्षिणा, लेकिन मैंने अंगूठा नहीं मांगा था, ठीक है। ठीक है, चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, कंडीशन ये है, he has given the crack version only for 64 बिट। अगर किसी का पुराने जमाने का वो है ना सिस्टम 32 बिट, उसके लिए नहीं। ठीक है, चलो मैं इंस्टॉल करता हूँ, फिर क्रैक बताता हूँ आपको। डबल क्लिक करना, लिखता है इसको दिस वन, डबल क्लिक करना, इसको इंस्टॉल। इसका जो कलर होता है ब्लू होता है, जो आपका फ्री वर्जन है उसका येलो कलर का होता है। तो आप दोनों इंस्टॉल कर लेना, डोंट वरी, मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। लेकिन इस टूल का मैं बताऊं इस्तेमाल आज भी लोग कौन से मेरे स्टूडेंट सबसे ज्यादा करते हैं, मतलब कैसे करते हैं कि आपका फ्री वर्जन है तो आप इसको अपने ले जाके इससे क्या करते हैं, कई चीजें कोडिंग अपने हाथ कर देते हैं। अगर कोडिंग करनी है तो कोडिंग करके इसकी कोडिंग यहाँ से निकालते हैं और फ्री वर्जन में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट, तो इसका it totally depends on the how clever you are going to use it. Next, हाँ इसको नेक्स्ट, हाँ इसमें एक वो है इंस्टॉल, एक चेकबॉक्स है, उस पर क्लिक कर दो, इंस्टॉल जेडीसी ड्राइवर्स। ये क्यों करा रहा हूँ कि आप अपने सोपीआई से डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो। आपको अलग से उसके लिए जो अभी मैंने जार डाली थी ना आपके प्रोजेक्ट में नेटबीन्स, वो यहाँ नहीं डालनी पड़ेगी, वरना वेयर एवर यू वांट टू कनेक्ट विद द डेटाबेस यू नीड दोस जार्स। लेकिन यहाँ पे ना करना पड़े, मैंने ही कर दिया। नेक्स्ट करिए, एक्सेप्ट और नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो इंस्टॉल। तो ये तो मैंने इंस्टॉल कर दिया। अगर आपको फ्री वर्जन चाहिए होगा तो इंटरनेट पे जाना और वहां पे लिखना सोप यूआई, तो वो आपको सोपीआई का फ्री वर्जन ही डाउनलोड करने को देगा, पेड देगा ही नहीं, क्योंकि उसके पैसे मांगेगा। उसका कलर होता है येलो कलर का, ये आपका ब्लू कलर से मिलेगा। ठीक है, इसको रन मत करना, अनचेक कर दो। रन इसलिए मत करना, अगर मैं इसको अभी रन करा दूंगा ना तो आपसे लाइसेंस मांग लेगा। पहले मैं इसमें क्रैक की डालूंगा, फिनिश करो। अब जहां पे इंस्टॉल हुआ, गो टू दैट लोकेशन, एक एक्सप्लोरर खोलो, उसमें एक फाइल एक्सप्लोरर ऑलरेडी खोला है तो उसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, क्लिक कर दो इस पे, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सी प्रोग्राम फाइल्स में जाना, सी प्रोग्राम फाइल्स, एंड यू विल गेट अ स्मार्ट बियर। सेकंड लास्ट देखो, मुझे दिख रहा है स्मार्ट बियर, ये कंपनी का नाम है। सोपीआई प्रो के अंदर जाओ, गो टू द बिन फोल्डर, और इसी के अंदर एक जार पड़ी है जो लाइसेंस को चेक करती है। तो उसको क्रैक करने का तरीका क्या है, जहां मैंने आपको डॉक्यूमेंट बना के दिया है ना, अभी जहां यूपीआई के डॉक्स पड़े थे, क्रैक्ड सोपीआई का जो फोल्डर था उसके अंदर, इसको ऐसे रहने दो, उस फोल्डर पे जाना जहां क्रैक यूआई जहां से कॉपी किया था, go to that one, yeah. यहाँ पे देखो एक जार पड़ी है, इसके ठीक ऊपर सोपीआई प्रो 5.1 पड़ी है, इसको कॉपी कर लो। ये एक्चुअली उसका तोड़ है, इट इज अ क्रैक फॉर दैट, और इसे यहाँ पे डाल दो, पेस्ट कर दो, यहीं पे पेस्ट कर दो। रिप्लेस मांग रहा है, कर दो, रिप्लेस कर दो। ये ऐसा काम करेगा कि वो क्रैक मांगेगा। इन्हें कंटिन्यू करो, वेरी गुड। अब जाओ अपने डेस्कटॉप से जाके नेटबीन्स को चला दो, ये बिना लाइसेंस के चल जाएगा। देखो सोपीआई प्रो दिख रहा है ऑन योर स्क्रीन, ये लास्ट वन, डबल क्लिक करो, अभी लाइसेंस नहीं मांगेगा। हाँ बस एक काम मत करना, इसे अपडेट मत करना। अगर अपडेट करा तो क्या मांगेगा, फिर आपसे पूछेगा अपडेट करे, तब ये पकड़ लेगा कि आपने क्रैक वर्जन यूज किया। तो गलती से उसको अपडेट मत करना बस, है ना। जैसे कि हम लोग विंडोज, वी टेक द लाइसेंस ऑफ द विंडोज बाय डिफॉल्ट कम विद द मशीन। विंडोज 10 आता है और उसके बाद अगर हमें नया वर्जन चाहिए तो हम नहीं करते अपडेट। अपडेट करेंगे तुरंत पकड़ लेगा कि हमने क्रैक वर्जन यूज किया। इसको एक काम करो, यहाँ पे कैंसिल कर दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे। और यहां से आपका नो नो, कोई हेल्प नहीं चाहिए, अलाउ एक्सेस कर दो। ठीक, ये देखो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन मांग रहा है, चुपचाप बंद कर दो उसको, नहीं चाहिए हमको, हमने वैसे ही चोरी करके लिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आते, ये आपका है, इस पे हम टेस्टिंग करेंगे। तो ये दिस टूल इज फार फार बेटर देन द पोस्टमैन। मैं आज भी कहता हूं पोस्टमैन इज जस्ट लाइक ए ड्रॉप ऑफ ओशियन इन कंपैरिजन टू इट। इसको मैं बहुत बड़ा सागर मानता हूं। और पोस्टमैन तो आप, पोस्टमैन सही बताओ, पोस्टमैन तो कभी कभी मैं ऐसा करता हूं, जब व्हेन आई सी दैट पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग द एपीआई, तो लास्ट में पोस्टमैन के 2-3 सेशन में ऐसे ही दे देता हूँ फ्री में, ऐसे ही कि चलो उसको भी बता देता हूँ। पोस्टमैन बहुत आसान चीज है,
ठीक है, मेन होता है लर्निंग के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है एपीआई का। यू कैन परफॉर्म द लोड टेस्टिंग आल्सो। अगर एपीआई की लोड टेस्टिंग करनी है, यू कैन परफॉर्म विद द JMeter, बट यू कैन परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ इट आल्सो। यहाँ सिक्योरिटी टेस्टिंग भी कर सकते हो फ्री में, so that is the advantage in the free version also. That's why I always recommend it. और SOAP-AI अपना ना पोस्टमैन तो आप ऐसे ही डाल दोगे, प्रोफाइल में ऐसे बनेगा आपका, वेब सर्विस टेस्टिंग विद SOAP-AI, पोस्टमैन एंड रेस्ट एश्योर्ड, क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क यूजिंग Maven एंड टेस्टिंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि दो सर्विस तो चल रही है। जो आपकी वो वाली वेब सर्विस है, दैट इज कॉल्ड, व्हाट यू कॉल्ड इट, SOAP बेस्ड API। वो क्या होती है, आप अपना एक डॉक्यूमेंट और खोलना उसमें, बस इसके बाद बाइंड अप करने के बाद, ठीक है। गो टू डॉक्यूमेंट सेक्शन, हाँ बैक करके जाना, बैक। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और दिख रहा है, SOAP बेस्ड सर्विस, सबसे लास्ट वाला, सबसे सेकंड लास्ट, इसको भी एडिट करो। इसमें जो होता है, इसका जो फॉर्मेट होता है SOAP बेस्ड सर्विस का, वो बिल्कुल अलग होता है। इसमें जो विजडल का लिखा है, विजडल URL, इसको कॉपी करो, टॉप पे लिखा है जो सेकंड में विजडल, हाँ इसको कॉपी करो और अपने एक ब्राउजर पे डालना है। तो एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, ओपन इट टैब। अब ये देखो, जो बाय डिफॉल्ट SOAP बेस्ड सर्विस होती है एक्चुअली, दैट डू नॉट सपोर्ट द गेट। ये सपोर्ट करती है किसको, केवल हमने स्टूडेंट वेब सर्विस को डिप्लॉय नहीं किया था क्या? अच्छा, अब स्टूडेंट वेब सर्विस एप्लीकेशन इसके ऊपर वाली, हाँ इसको भी डिप्लॉय कर, वो भी चल जाएगा डिप्लॉय। अब इसके बाद आपको कभी नहीं करना है, जब भी whenever you are going to open your system, come to and just simply deploy only one। किसी एक को डिप्लॉय करोगे, तीनों चल जाएगी, क्योंकि तीनों सर्वर पे एक बार डिप्लॉय हो चुकी है। देख गया डॉक्यूमेंट। तो इसमें वहां पे इन रेस्ट एपीआई आपको URLs मिलते हैं, लेकिन SOAP बेस्ड सर्विस में क्या मिलता है, विजडल। अब भी बहुत कंपनी यूज करेंगे, मे बी इन योर केस यू आर नॉट यूजिंग, बट मोस्ट ऑफ द कंपनी आर स्टिल, इन माय करंट कंपनी वी आर यूजिंग। हमारे पास 100 वेब सर्विस है, उसमें से आप मानोगे नहीं 80 वेब सर्विस ऐसी हैं जो SOAP बेस्ड है। 20 हमने लेटेस्ट बनाई है जो हमने, लेकिन हम यूज सब करते हैं तो हम उनको भी टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, SOAP-UI पे जाइए, बस इसके बाद हम 5 मिनट और ले रहे हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। यहाँ पे फाइल पे जाइए ऊपर टॉप में, और यहाँ पे जब देखोगे तो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू SOAP प्रोजेक्ट, रेस्ट प्रोजेक्ट। सबको दिख रहा है? एवरीबॉडी एबल टू सी? यस सर। अगर आपको SOAP बेस्ड सर्विस टेस्ट करनी है तो न्यू SOAP प्रोजेक्ट बनाओगे, अगर रेस्ट बेस्ड करनी है तो रेस्ट। अभी मैं आपको SOAP बेस्ड दिखा रहा हूँ, न्यू SOAP प्रोजेक्ट करो, और नीचे जो विजडल का URL है उसमें डाल दो, प्रोजेक्ट नेम में नहीं, विजडल में, इस पे पेस्ट कर दो, विजडल में पेस्ट कर दो जो भी कॉपी किया था विजडल आपने, और वहां पे प्रोजेक्ट नेम में बाय डिफॉल्ट उसने नाम सजेस्ट किया है, उसमें से विजडल हटा दो, पीछे से विजडल और क्वेश्चन मार्क हटा दो, स्टूडेंट सर्विस रहने दो, बस नाम थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ओके कर। इसमें डिफरेंस ये होता है, वहां पे रेस्ट बेस में आपके URLs होते हैं, यहाँ पे होता है ऑपरेशन। यहाँ पे गेट ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करो, एक्सपेंड करो इसको, एक्सपेंड, और रिक्वेस्ट पे क्लिक करो, डबल क्लिक, इट विल ओपन ए UI फ्रॉम यू। इसमें ऊपर ग्रीन बटन जो रन का बटन है उस पर क्लिक कर दो, रन का बटन। ठीक है, राइट साइड में आपको डेटा दिख रहा है, XML के टैब पे क्लिक कर दो। लेफ्ट में एक XML का टैब दिख रहा होगा, इसी के बगल में लेफ्ट में, हाँ ये और बगल में, या रॉ के ऊपर ऐसे ही डेटा आ रहा है आपका, सेम डेटा देखो, उसी डेट मैंने एपीआई बनाई ही इसलिए कि मैं आपको एक ही एपीआई, एक ही ऑपरेशंस को सारी एपीआई में दिखा दूं, फिर आपको डिफरेंस समझ आएगा। अभी तो आपको डिफरेंस बताऊंगा कि SOAP में और उसमें डिफरेंस क्या होता है, SOAP और रेस्ट में, तब आप ऐसा आंसर दोगे। और ये बता दो, यू आर यूजिंग और नॉट, दैट इज द हॉट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SOAP एंड रेस्ट बेस्ड एपीआई। आप इंटरनेट उठा के देख लो, इस क्वेश्चन के बिना कोई इंटरव्यू लेते ही नहीं है, पूछते हैं ये, और आंसर यहीं पे बंदे नहीं दे पाते, क्योंकि SOAP कभी देखी नहीं, या SOAP देखी तो कभी समझी नहीं। And when you understand the difference from the practical things, then you can understand. Are you getting my point? Yes sir. तो ये हमारा सेटअप पार्ट इतना कंप्लीट हो गया। Everybody have to do it, सबको करना है। ठीक है, मैं उसका जो लिंक मैंने इसीलिए नहीं किया था, बिकॉज आई वांट टू मेक द फाइनल लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जो भी मतलब मैं डोंट टेक इट नेगेटिव, लेकिन मैंने वही सोचा था जो भी पेड है फाइनल, उनके साथ में जितने भी नेगेटिव थे मैंने उनसे बोला या तो लीव कर जाओ या मैंने खुद ही हटा दिया। ठीक है, तो आई वांट टू कंटिन्यू, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3 सेशन इसके ले चुका था। अब नाउ आई डोंट वांट टू रिपीट इट अगेन। अब जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे आई हैव टू कंटिन्यू विद द प्रॉपर सेशंस। तो 2 हो गए, अब मुझे कंटिन्यू। ठीक है, तो स्टिल यू हैव अ चांस कि आप में से जो भी कंफर्म करता है मुझे बता देना,
आई विल शेयर द लिंक। अब इस जो मैंने लिंक आपको डॉक्यूमेंट का दूंगा जैसे लिखिता ने किया हुआ है, इसको यू हैव टू डाउनलोड ऑन योर मशीन एंड देन आई विल हेल्प यू इन इंस्टॉलिंग इट। ठीक है, ठीक है। और कल Yeah, सेशन मैंने सबको बता रखा है, सेशन विल नॉट बी ऑन टुमारो, सेशन विल बी ऑन अल्टरनेट। बीच में मैं जीरा के बैचेस, ठीक है, और वो मैं इसलिए आपसे नहीं बोलूंगा क्योंकि जीरा का बैच भी मैं खत्म करने वाला हूँ, सो देयर इज नो बेनिफिट टू जॉइन दैट। छोटा बैच होता है, इसकी फीस भी बहुत कम है, दैट इज ओनली 2500, ठीक है। लेकिन वो आपको फायदा इसलिए नहीं है कि मैंने आधा बैच खत्म कर दिया, वो खत्म ही होने वाला है कुछ दिन में, ठीक है। सो दैट्स बैच विल गो फॉर द अल्टरनेट डे। आज हुआ है, कल नहीं होगा, कब होगा? परसों, ठीक है। सर नेक्स्ट हम सैटरडे कर सकते हैं क्या? सैटरडे इसलिए नहीं कर सकते हैं, ये आप भी कहोगे प्रदीप कितने पैसे कमाता है। सैटरडे संडे में 4 बैचेस लेता हूँ टोटली ऑक्यूपाइड, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे और रात में 8 बजे, ठीक है। सर तो आपका वीकेंड का बैच है एपीआई वालों का या अभी? अभी नहीं, अभी नहीं है मेरे पास। ये देखो मेरे पास, मैं सिलेनियम से मुझे फुर्सत ही नहीं है अभी भी। आप लोग को बैच स्टार्ट करने से पहले देखो मैं क्या कंफर्म कर रहा था कि सबके जो सिलेनियम का बैच चल रहा है उसमें सबका सेटअप पूरा है कि नहीं है। दैट्स व्हाई पीपल ट्राई टू यू कैन से ज्वाइन माय बैच, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत दिल लगा के पढ़ता हूं। ये देखो इस बैच में अभी भी पता है हमारे पास सीटें फुल हो गई, हम रख नहीं पा रहे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बंदा है जिसको मैंने अलग रखा हुआ है, अलाउ नहीं है, हम 12-13 से ज्यादा रखते नहीं है इसमें। इसमें एक बंदा मैंने फिर भी एक्स्ट्रा किया हुआ अपनी रिक्वेस्ट में। 12 बंदे, इसमें 3 ये हैं, ये आई एम, ये जिस कंपनी के लिए पढ़ाता हूँ, और ये उसकी एचआर है। अगर इन 3 को हटा दें कितने आपकी लोग स्क्रीन हैं? शेयर नहीं है सर। अच्छा मेरी स्क्रीन शेयर नहीं, सॉरी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। थोड़ा सा शेयर करते हैं। लिखिता वो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। Yes. तो इस तरह से थोड़ा सा करते हैं, वैसे काम करते हैं, इसको रिकॉर्डिंग रोक देते हैं। ये रिकॉर्डिंग आपको देने से क्या फायदा है ना, ये तो मैं अपना प्रचार करूंगा, गंदी बात है।